بات میں مودی جیتیں یا ہاریں یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. Politics is not only about the judicial system, politics is also about perception. And I think it is important political parties. I think we, go to the people based on the perception, what we believe in. And I think that perception is not for us alone to believe, it is for the people to believe what we say. And I think that is most important. In terms of any interview, there's no point to comment because it is for each one to give his or her version. But the fact remains that perception today is important, and if the judicial system has given a certain finality to any controversy, I think we should let it rest there. मोदी जीते या हारे ये लोगों का फैसला होगा. हिंदुस्तान के लोग फैसला करेंगे कौन यहाँ का वजीर आजम होगा जो हिंदुस्तान को आगे चलाएगा. ये लोगों का फैसला है. حقیقت پسندی یا موقع پرستی. عام انتخابات قریب ہیں، اس لیے ان بیانوں کے معنی سیاق و سباق سے اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. راہل گاندھی کے حالیہ انٹرویو کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر پرفل پٹیل کا یہ کہنا ہے کہ آج ادراک کی اہمیت ہے. اگر کسی تنازع پر عدلیہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اسے کریدنا نہیں چاہیے. پرفل پٹیل سے قبل نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ نے کہا کہ عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد میں دارائے تلخی کے بارے میں فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس پر حتمی فیصلہ عمر عبداللہ کریں گے. خیال رہے کہ کانگریس سن 2002 فسادات پر نریندر مودی کو نشانہ بناتی رہی ہے. فسادات کی بنیاد پر کانگریس مودی کی سیکولر ساکھ پر سوال کھڑے کرتی رہی ہے. کانگریس کا مودی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے سن 2002 فسادات کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے اور بلوائیوں کو کھلی چھوٹ دی. بہرحال آئندہ عام انتخابات 3 مہینے میں ہونے والے ہیں، ایسے میں ان دونوں جماعتوں کے بیانات کو جانچنے پرکھنے والا کہا جا رہا ہے. بیورو رپورٹ ATV نیوز. جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا کہ کانگریس اتحاد توڑنے کی خواہاں نہیں ہے. اگر نیشنل کانفرنس چاہے تو اس اتحاد کو آخر تک برقرار رکھ سکتی ہے. تاہم ہمیں عمر عبداللہ کے استعفے کے بارے میں معلوم نہیں ہے. سوز نے کہا کہ کانگریس نے نئے انتظامی یونٹ کے خلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ ہائی کمان بھی سب کمیٹی کو رپورٹ جمع کرنے کو کہا ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الائنس توڑنے میں. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ الائنس بنا رہے وہاں پہ؟ اس میں کوشش کیا کرنی، ہم تو ہیں الائنس میں ہیں اور آخری دن تک چلنی چاہیے اگر نیشنل کانفرنس چاہے گی تو اس کو بچانے کے لیے آپ کچھ میٹنگز وغیرہ بچانا کیا ہے؟ عمر صاحب کا انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں گے، کولیشن توڑنا چاہتے ہیں. ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پریس والے کہتے ہیں ہم کو، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، ہم کو نہیں کہا گیا. نیشنل کانفرنس آپ سے کچھ نہیں کہا؟ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ کون سا؟ ان کی مانگ کو نہیں، ہم تو کانگریس دباؤ میں نہیں آ سکتی، وہ تو نہیں ہے. ہم کو لوگوں کی خدمت کرنی، اسی کام میں لگے ہیں. دباؤ میں نہیں آ سکتی کانگریس، اپنے مفاد کی حفاظت کرے گی. 700 یونٹس کی بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ہم خلاف نہیں ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے یونٹ بن سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. اس میں اصول یہ ہمارا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ریاست کے تینوں خطوں کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ایکویٹی اور جسٹس برابری ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ. مظفر نگر فسادات متاثرین کے دکھوں کی کوئی انتہا نہیں. شاملی ریلیف کیمپ میں ایک اور بچی موت کے منہ میں چلے گئی. حکام کے مطابق بچی نیمونیا کی زد میں آ گئی تھی. ادھر گزشتہ برس اکتوبر میں مظفر نگر ضلع میں 3 نوجوانوں کے قتل کے کیس میں پولیس نے 9 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے. مظفر نگر اور شاملی کے ریلیف کیمپوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی لقمہ اجل بن رہا ہے. شدید ٹھنڈ اور سہولیات کی عدم موجودگی کے سبب پناہ گزینوں کی مشکلیں سوا ہو گئی ہیں. ملک پور گاؤں کے کیمپ میں ایک 4 سالہ بچی کی موت ہو گئی ہے. ٹھنڈ کے سبب اسے نیمونیا ہو گیا تھا. گورنمنٹ ہیلتھ سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ اطلاع میڈیا کو دی. اس کیمپ میں گزشتہ ہفتے ایک 5 سالہ بچی کی موت واقع ہو گئی تھی.
ادھر شاہپور گاؤں میں 48 سالہ ایک خاتون کی موت منگل کے روز ہوئی تھی۔ خاتون کا تعلق کاکڑا گاؤں سے تھا۔ ادھر قومی اقلیتی کمیشن کی ایک ٹیم نے منگل کے روز متاثرین کی بازآباد کاری کے حوالے سے کیے جا رہے اقدامات پر ضلع حکام سے بات چیت کی تھی۔ 7 ستمبر 2013 سے 20 دسمبر 2013 تک مظفر نگر اور شاملی میں 34 بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ ان میں 12 بچوں کی موت ریلیف کیمپوں میں جبکہ 22 بچوں کی موت مختلف اسپتالوں میں علاج کے دوران ہوئی تھی۔ اس بیچ پولیس نے 30 اکتوبر کو محمد پور رائے سنگھ گاؤں میں 3 نوجوانوں کے قتل کیس میں 9 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ اس قتل کیس میں 15 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔ پولیس نے ان میں سے 9 کو گرفتار کیا تھا۔ SIT کے مطابق فسادات اور اس سے جڑے مختلف معاملوں میں 683 افراد مبینہ طور سے ملوث پائے گئے ہیں۔ ان میں 240 کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 46 نے خود سپردگی کی تھی جبکہ 11 کو مردہ پایا گیا تھا۔ SIT نے فسادات اور اس سے جڑے 30 معاملوں کی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ 1984 کے سکھ مخالف فسادات کی SIT کے ذریعے جانچ کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل HS پھولکا کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس گجرات فسادات کی SIT جانچ کی حمایت کرتی ہے تو پھر 1984 فسادات کی جانچ SIT کے ذریعے کیوں نہیں کرائی جا سکتی۔ واضح رہے کہ 1984 فسادات میں ہزاروں سکھوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں صرف 28 افراد کو ہی سزا ہوئی ہے۔ میں نے اس بارے میں بات کی اور وہ اس کے لیے کافی پازیٹیو ہیں، اور SIT کے گٹھن کا معاملہ اور اس کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے یہ اب اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ہوگی۔ دیکھیے SIT کی مانگ تو یہ شروع سے ہی چل رہی ہے۔ جیسے کہ گجرات کے کیس میں SIT بنائی اور جو کیس پولیس نے کلوز کر دیے تھے وہ SIT نے پھر ری انویسٹیگیٹ کیے اور ان میں پایا کہ یہ ایویڈنس ہے اور اس میں دوبارہ پھر مقدمے چلے اور کچھ لوگوں کو سزا ہوئی۔ جیسے ہی کیونکہ دلی کے کیس میں بھی تقریباً 40-45% جو FIR رجسٹر ہیں اس میں یہ جو دلی پولیس نے کیس کلوز کر دیا ایز انٹریسڈ، یہ کہہ کے کہ اس میں ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے۔ ناناوتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 241 FIR 587 ٹوٹل FIR رجسٹر کیے تھے، بیچ میں 241 FIR ایز انٹریسڈ کو کلوز کر دیا دلی پولیس نے، کہا کہ اس میں ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ SIT کی مانگ شروع سے ہو رہی ہے۔ وزیر شہری ہوا بازی اجیت سنگھ نے ایئرپورٹ پر ارکان پارلیمان کو خاص سہولیات دیے جانے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اجیت سنگھ نے واضح کیا کہ نہ وزارت اور نہ ہی DGCA نے ایسے احکامات جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے حوالے سے پہلے اس طرح کی خبر میڈیا میں آئی تھی کہ DGCA نے ایئرپورٹ اور نجی ایئر لائنز کو گائیڈ لائن جاری کرتے ہوئے ارکان پارلیمان کو خاص سہولیات دینے کو کہا تھا۔ بہت ٹی وی میں میں خبر دیکھ رہا ہوں، یہ بالکل غلط خبر ہے۔ کوئی گائیڈ لائن نہیں ایشو کی گئی ہے سر، کوئی نیا وچار کچھ نہیں ہے؟ کوئی نیا وچار نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ایشو ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی دھمکی دی ہے۔ کرن کمار ریڈی کا کہنا ہے کہ تلنگانہ بل کے مسودے پر بحث کے لیے مہلت میں اضافہ نہ کرنے اور پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پیش کرنے کی صورت میں وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ کرن کمار ریڈی کے قریبی ذرائع کا ماننا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے معاملے پر کانگریس پارٹی پر دباؤ بنانے کے لیے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ کرن کمار ریڈی کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم سے تلنگانہ اور سیما آندھرا علاقوں کو نقصان کا سامنا ہوگا، اس لیے وزیر اعلیٰ متحدہ آندھرا پردیش کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاضر ہوں۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ 2014 میں اگر نظر ڈالیں، انتخاب قریب ہے اس لیے یہ سوال ہے، مدرسہ اردو قبرستان یہی اقلیتوں کے
इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इश्यूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिन्ना पर है तो उतना ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतना ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के 8वें यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के हाथों नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह अमल में आया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने भी शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आज़म के खिताब के बाद एक शख्स की जानिब से हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम से मुतालिक सवालात पर सिक्योरिटी दस्ते ने उसे बाहर कर दिया। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के ज़ेर निगरानी एक नए शोबे का आगाज हुआ है। मुल्क भर में मौजूद वक्फ जायदादों को तरक्की देने के गरज से नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से एक नए इदारे का क़याम अमल में आया। इदारे के क़याम का मकसद वक्फ अर्जियात को तरक्की देते हुए इनसे होने वाले आमदनी को मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हुकूमत के इस इक़दाम को अक़लियती तबके की फलाह की जानिब एक और अहम कदम करार दिया है। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन is just one of the several far-reaching initiatives that the Ministry of Minority Affairs has taken ever since its inception in the year 2006. Ladies and gentlemen, this corporation has been established with an authorized share capital of rupees 500 crores. It will facilitate and mobilize financial resources for setting up of facilities like schools, colleges, hospitals on Waqf property for community purposes in a transparent manner. वज़ीर आज़म के खिताब के बाद एक फर्द ने मरकजी हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक सवालात करने चाहे, लेकिन वज़ीर आज़म के हिफाजती दस्ते ने उसका मुंह जबरन बंद करते हुए उसे बाहर कर दिया। दूसरी जानिब सोनिया गांधी ने अपने खिताब में मुल्क की अवाम को सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से होशियार रहने का मशवरा दिया। भाइयों और बहनों, अनेकता में एकता भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद है। हमारा संविधान अक़लियतों सहित सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। शासन तंत्र की यह जिम्मेदारी है कि वह सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करें, उसे प्रोत्साहित करें और माइनॉरिटी को समान अवसर का लाभ मिले। यह जरूरी है कि माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेशनल वक्फ कॉरपोरेशन की इफ्तिताही तकरीब में शरीक मुतादिद रियासतों के वजीरों ने हुकूमत के इक़दाम पर मिले जुले रद्द अमल का इज़हार किया है। 20 दिन लग गया कुछ काम करने के लिए। कांग्रेस सरकार ने जो भी कदम उठाया हो, भला बुरा जो, लेकिन इसमें कुछ होने को नहीं है। ये कदम पहले उठाया होना चाहिए, तभी कुछ होता ही। अब तो लोग एक ही बात समझ रहे हैं, पूरे देश के लोग, तो ये जो क्या है चुनावी हथकंडा है, चुनाव में लोग लुभाने के लिए मुसलमान लोग करने जा रहे हैं। कहीं से भी डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती है। आज का जो डेट है, टाइम है, वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है और ये अब शुरू कर रहे हैं। 10, 15, 20 दिन में चुनाव अनाउंस होने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा। तो आचार संहिता में क्या काम करेंगे? सिर्फ ये है कि इसको दिखा के मुसलमानों का वोट हासिल हम करें,
यही इनकी जहनियत है। उसमें काफी दिक्कत होती है, पुलिस उसको पहले वो जो एफआईआर बनाने में और इन्वेस्टिगेशन करने में, और हमारा जो स्टाफ का जो जिसकी कमी है, काफी कमी है। एक इंस्पेक्टर या कुछ आध लोग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जब वो एक वक्फ इंस्पेक्टर जाता है तो उसकी कोई कदर नहीं होती और काफी दिक्कत हो रही है। पर्पस यहाँ पे रहेगा और बहुत सारे जब वक्त प्रॉपर्टी कमर्शियल हर ये फॉरेस्ट काउंटी कर्नाटक के अंदर तकरीबन 2000 ऐसे वक्त प्रॉपर्टी हैं जहाँ कमर्शियली डेवलप करके महाना 5 लाख से 1 करोड़ तक इनकम आने वाले चांसेस ऐसे हैं। उनके वो बुतवाला के पास फाइनेंशियल ये असिस्टेंस नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही पड़े, कई सालों से पड़े हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा होता है कि वो प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे। माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनका ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये तो मेरा ये मानना कि अगर ये बहुत पहले थोड़ा सा और करते हैं यहाँ पे 6 महीना साल भर पहले यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पे। खैर देर से ही आए थे, ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे मुसलमानों को जो है बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा यहाँ पे। और कोई ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल कोई से होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मुसलमानों के लिए जो है हक में जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र के ख्वातीन कमीशन की एक रुकन और एनसीपी लीडर आशा मिर्जे ने ख्वातीन के रवैये और चाल चलन को इस्मत रेजी की वजह बताते हुए एक तनाजा खड़ा कर दिया। नागपुर में पार्टी की ख्वातीन विंग के एक इजलास से खिताब करते हुए मिर्जे ने दिल्ली के इज्तिमा इस्मत रेजी के वाक़े का हवाला देते हुए सवाल किया था कि मुतासिरा लड़की को 11 बजे रात फिल्म देखने के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर निकलने की क्या जरूरत थी। मिर्जे ने मुंबई की शक्ति मिल्स में फोटो जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती का भी हवाला दिया था। हालांकि अब मिर्जे ने इस मामले पर माफी मांग ली है। हुई जो महिलाओं के अत्याचार है उसके कॉजेस क्या है, उसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, तो एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट आई ऑटर्ड दैट देयर आर सम पॉइंट्स, ऐसी कुछ पॉइंट्स है जिसमें महिलाएं भी जवाबदार हो सकती है और वो कंट्रोवर्शियल था, वो है ही कंट्रोवर्शियल। एंड आई वोंट से, मैं ऐसा नहीं बोलती कि जो मैं बोल ली वही सच था। मैं बोलती हूँ कि आप इस बारे में भी सोचो कि महिलाओं ने अलर्ट रहना चाहिए, महिलाओं ने खुद का बॉडी लैंग्वेज, खुद का ड्रेस सेंस ये ऐसा रखना चाहिए कि दे आर नॉट इनवाइटेड। शरद पवार की दुख्तर और एनसीपी ख्वातीन शाख की सरबराह सुप्रिया सूले भी नागपुर के उस प्रोग्राम में शरीक थी जहां आशा मिर्जे ने इस्मत रेजी के ताल्लुक से मुतनाज़े बयान दिया था। ताहम अब वो उनका बचाव कर रही हैं, जबकि बीजेपी और शिवसेना ने एनसीपी के रुकन को तनकीद का निशाना बनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने सॉरी कह दिया एक बार, इट्स नॉट अबाउट मेंटालिटी, शी सेड सॉरी। और कल आशा ताई ने बहुत अच्छा काम किया है जो आपको शायद पता नहीं कि आपको पता है उसके बारे में। शी इज डन अ वेरी गुड जॉब, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करें। उन्होंने गलती की, अगर आदमी से गलती हो, अगर वो माफी मांगे तो भगवान भी माफ करता है। हम लोग आदमी कौन चीज है, मुझे अगर कोई माफी मांगे या सॉरी बोल दे तो मैं उसी तरफ छोड़ दूंगी। लेकिन वो पहले की बात बयान को माफ कर दिया है, तो दैट विल बी एन इंटरनल इशू ऑफ द पार्टी। आई डोंट हैव दोज राइट्स, दैट द पार्टी विल डू। तो इस प्रकार से बयानबाजी जो हो रहा है उससे महिलाओं का अपमान हो रहा है और आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका मतलब आपका कानून, आपकी सरकार नाकाम है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का बयान किसी महिला के मुख से आना, और वो भी वो महिला जो जिम्मेदार पद पर हैं, वो वहां की महिला आयोग की मेंबर हैं। आए दिन उनके सामने ऐसी बहुत सी शिकायतें आती होंगी जहां पीड़ित महिलाएं आती होंगी और बताती होंगी कि किस प्रकार की समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। इसलिए उनको तो कम से कम फर्स्ट हैंड नॉलेज हर तरह के समस्या जो महिला जूझ रही है उसके साथ होती है। ये जो जेंडर का डिफरेंस आता है कि महिला ही रात को नहीं निकलनी चाहिए, पुरुष हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यही तो महिलाओं की सेफ्टी की बात आती है कि अगर महिला को सुरक्षा मिली हुई है कानून और व्यवस्था से, तो दिन क्या रात क्या। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को बातचीत का एक और मौका दिया है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब के दौरान कहा कि उनकी जानिब से तालिबान को बातचीत का ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। तालिबान से बातचीत के लिए वज़ीर आज़म ने 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। से कर रहा हूं
पाकिस्तान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बार फिर बातचीत का मौका दिया है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात की मेज पर आने से कबल तालिबान को अपनी शिद्दत पसंद कार्रवाइयों को तर्क करना होगा। हम माजी के तल्ख तजुर्बात को पसे पुश रखते हुए पुरअमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जरूरी है कि मुकम्मल नेक नीति के साथ इस अमल का आगाज किया जाए, जिसका पहला तकाजा ये है कि दहशतगर्दी की वारदातों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को बातचीत का एक और मौका दिए जाने की बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से बातचीत की पेशकश के बाद कही है। पाकिस्तानी तालिबान के तर्जुमान शहीदुल्लाह शाहिद ने इतवार को अपने एक बयान में उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तानी हुकूमत तंजीम को बातचीत का एक और मौका देगी। तालिबान ने शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। हम उन लोगों की कार्रवाइयों से भी सरफे नजर नहीं कर सकते जो ड्रोन हमलों को जवाज बनाकर बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानों से खेलते हैं। क्या ड्रोन हमले पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं? क्या स्कूल जाने वाले वो मासूम बच्चे उसके जिम्मेदार थे जिनको खुद कुछ हमलों में मार दिया गया? तालिबान से बातचीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी में कौमी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी माविन इरफान सिद्दीकी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक अफसर मेजर मोहम्मद आमिर, सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफजई और अफगानिस्तान में साबिक पाकिस्तानी सफीर रुस्तम शाह महमद शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मामले में चल रहे मुकदमे की समाअत एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। मुल्क से गद्दारी के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रही इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि उन्हें मुशर्रफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर इस्तगासा के एतराज़ात से मुकम्मल वाकफियत के लिए कुछ वक्त दरकार है। मुशर्रफ के वकील की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अदालत ने मुल्क से गद्दारी के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत एक रोज के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के शहर कराची में पाकिस्तानी रेंजरों के सदर दफ्तर के करीब हुए खुदकुश धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार ने रेंजर्स दफ्तर के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। यूक्रेन के साबिक सदर लियोनिड रोचुक ने मुल्क में खाना जंगी फूट पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। इस बीच एहतजाजियों ने वजारत ज़राअत की इमारत पर कब्जा कर लिया है। वजारत की इमारत एहतजाजियों से खाली कराने की कोशिशों के दौरान तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। दो 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है। मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए। जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर
रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आका अलैहिस्सलाम का अहले मदीना, मदीना में जितने खुद्दाम थे, गुलाम थे, बांदियां थी, बच्चे बच्चियां थे उनके और खुद्दाम थे, उन सारों के साथ उसने सलूक एक मिसाली था। वो क्या करते, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हदीस इमाम मुस्लिम ने इसकी तखरीज की, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लल गदात जा खदमुल मदीनत बिआनियतिन फीहल मा फमा युअता बिइनाइन इल्ला गमस यदहु फीह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में नमाज फजर अदा कर लेते, अनस इब्न मालिक ने बताया, नमाज फजर अदा कर लेते तो आप जब मस्जिद से निकलते तो मदीना के बच्चे, गुलाम और बांदियां और स्लेव्स जितने थे वो सारे के सारे अपने बर्तन लेके पानी के आ जाते। और एक हदीस में आता है ये कि बड़ा ठंडा, सर्दी का भी सख्त मौसम होता और यख पानी होते ठंडे, बर्तनों में डाल के सख्त सर्दियों में सुबह का वक्त मुंह अंधेरे पानी बर्तन भर के पानी से लेके आ जाते, खड़े होते और अर्ज करते या रसूलल्लाह अपना दस्ते मुबारक हमारे पानी में डबो दें बरकत के लिए। ये तबर्रुक का उनका अकीदा था, तबर्रुक का, तवस्सुल का, हुसूल बरकत का अकीदा था सहाबा का। तो मदीना के ये बच्चे बच्चियां, गुलाम और बांदियां ठंडे पानी उस मौसम में भी लाते और आका अलैहिस्सलाम उनके हर एक के बर्तन में अलग अलग अपना दस्ते मुबारक डबोते जाते और फिर उसके बाद वो ले जाते, उनको पीते, बीमारों को पिलाते, शिफायाब होते और बरकतें हासिल करते। इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है किताबुल फदाइल में, बाब कुर्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन नास व तबर्रुकहिम फीह। आका अलैहिस्सलाम का लोगों के साथ कुर्बत का मजमून कि कितने करीब थे और फिर लोगों का बरकत तबर्रुक हासिल करना आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस से, इस बाब में। और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सही बुखारी में है, कानतिल आमातु मिन इमाए अहलिल मदीनति लतअख़ुज़ु बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतंतलिकु बिही हैसु शाअत। एक बांदी थी, खातून थी, ऐसे गुलाम और बांदी थी, एक कुछ दीवानी भी थी। तो वो मदीना तैयबा की बांदियों में से वो बांदी, फरमाते हैं कई बार दीवानी वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाती और आपका दस्ते मुबारक बाजू पकड़ लेती और कहती कि मेरा काम करने वाला और कोई नहीं, वो आजाद थी, उसका कोई वारिस और देखभाल करने वाला ना था, तो आके मेरे फलां काम रहते हैं आपके कर दीजिए। आका अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़ते, जितने काम वो कहती करके तो फिर वापस तशरीफ लाते। यह आपका अमल मुबारक था।
اس کو امام بخاری نے روایت کیا کتاب الادب باب الکبر کے اندر کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری اور ملاطفت لوگوں کے ساتھ، اس باب میں امام بخاری نے آقا علیہ السلام کے اس عمل کو بیان کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا میں نے